ڈسٹرکٹ نیوز لیٹر مختلف اضلاع میں جاری ترقیاتی منصوبوں سے متعلق جامعہ رپورٹس پر مبنی آکاش وانی نیوز سری نگر کی پیشکش ڈسٹرکٹ نیوز لیٹر۔ ضلع نامہ کا تازہ شمارہ لے کر آپ کا میزبان شیخ تجمل حاضر ہے۔ سمعین، آج کے ضلع نامہ میں ہم شمالی کشمیر کے کپوارہ ضلع میں اخروٹ کی صنعت سے متعلق بات کریں گے۔ سمعین، کپوارہ ضلع زمانہ قدیم سے ہی اخروٹ کی پیداوار کے لیے مشہور ہے، کیونکہ یہاں کاشت ہونے والے اخروٹ اپنی غذائیت اور ذائقے کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہیں۔ اخروٹ کے ہائی ڈینسٹی اقسام نے ضلع میں اس صنعت کے اندر انقلاب برپا کیا ہے، اور اب یہاں اکثر کاشتکار پرانے اور روایتی پیڑ پودوں کے بجائے نئے طرز کے اخروٹ کے پیڑ لگا کر اپنی معاشی اور معاشرتی حالت میں سدھار لا رہے ہیں۔ ضلع میں اخروٹ کی صنعت کے حال احوال جاننے کے لیے ہمارے کپوارہ کے نمائندے رفیق احمد نے والنٹ ریسرچ سینٹر کپوارہ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر امتیاز احمد لون کے ساتھ بات کی، تو انہوں نے تفصیلات کچھ ان الفاظ میں دیں۔ والنٹ یعنی اخروٹ پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اگر ہم پورے ہندوستان کی بات کریں، جموں کشمیر واحد ریاست ہے جو سب سے زیادہ ایریا پروڈکشن اور پروڈکٹیوٹی میں والنٹ نمبر 1 پہ ہے، یعنی 95% والنٹ پورے ہندوستان میں جموں کشمیر سے جاتے ہیں۔ اس میں ہمارے جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہے، کپوارہ نمبر 1 ڈسٹرکٹ، اور یہ تقریباً ہمارا جو ایریا ہے 10,000 ہیکٹیئر سے زیادہ اس میں ہے، اور ہمارا جو اس میں والنٹ ہے نمبر 1 والنٹ مانا جاتا ہے۔ لیکن اس میں کچھ پرابلمز بھی ہیں، یعنی ہم جو ہمارا والنٹ ہے یہ ابھی ہم کمپیئر یو ایس اے اور چائنا سے نہیں کر پا رہے ہیں، کیونکہ ہماری سب سے بڑی پرابلم اس ٹائم جو والنٹ میں ہے کہ وہ سیڈلنگ اوریجن، یعنی وہ سیڈ پہ ہیں، بہت بڑے پلانٹس ہیں، یعنی ایک کنال میں 2 یا 4 پلانٹ آ جاتے ہیں، اور ہر سال کہیں نہ کہیں یہ ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، جو لوگ ہارویسٹنگ کرتے ہیں وہ گر جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارے یونیورسٹی کے پاس بہت بڑا چیلنج تھا کہ ہم ان چیزوں کو کیسے سالو کریں۔ سب سے پہلے کیا پرابلمز تھی ہمارے پاس، کہ سب سے بڑی پرابلم ہمارے پاس جو ہمارے جو پلانٹ والنٹ پلانٹ ہے یہ بالکل جنر جیسے پڑے ہیں۔ دوسرے سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس ویرائٹیز نہیں تھی۔ تیسری سب سے بڑی پرابلم تھی کہ ہمارا یہ گورنمنٹ کا جو ہے تھا کہ کم زمین میں زیادہ فصل اگانا۔ یہ چیزیں ہم نے جب اس پہ ریسرچ کی، سب سے پہلے ہم نے ایک چیز کیا کہ ہم نے گرافٹڈ والنٹ پلانٹ انٹروڈیوس کیا، یعنی گرافٹڈ والنٹ کا مطلب ہے کہ جس طرح ہم ایپل میں پیوند سازی یعنی گرافٹنگ یا بڈنگ کرتے ہیں، اسی طرح ہم والنٹ میں بھی کرتے ہیں، اور اس میں ہم کامیاب ہو گئے۔ دوسرے ہمارے پاس ایک اور پرابلم تھی کہ ہمارے پاس ویرائٹیز نہیں تھی، کیونکہ یہاں سے ہمارا کیلیفورنیا کا والنٹ، چائنا کا والنٹ اور بھی بہت سارے نیوزی لینڈ کا والنٹ آ رہا ہے، اس کو مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس اچھے ویرائٹیز کی ضرورت ہے۔ ہم نے بہت ساری جرم پلاز آئیڈینٹیفائی کیا، وہی جرم پلاز ہم گرافٹنگ کرتے ہیں اور وہ پلانٹ مٹیریل ہم فارمرز کو دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے آنریبل وائس چانسلر صاحب اور ڈائریکٹر ریسرچ صاحب نے بہت بڑا ڈیسیجن لے لیا ہے کہ کیوں نہ ہم ایک ایسا سینٹر بنائیں جس سینٹر میں صرف ہم والنٹ پہ کام کریں، کیونکہ اگر ہم ایپل کی بات، ویٹرنری کی سیب کی بات کریں یا ویٹرنری کی، ہر ایک جگہ پر اپنا اپنا ایک اسٹیشن ہے، لیکن پورے ہندوستان میں والنٹ کا کوئی اسٹیشن نہیں ہے۔ اب پہلی بار جموں کشمیر میں ایک والنٹ ریسرچ اسٹیشن اسٹیبلش ہو گیا، اور یہ ڈسٹرکٹ کپوارہ میں ہی ہو گیا، یعنی ہندوارہ کلنگام میں یہ ہو گیا۔ اس میں تقریباً 150 سے 200 کنال ہیں۔ یہاں صرف ایک ہی کام ہوگا، وہ والنٹ یعنی اخروٹ پہ۔ اخروٹ کا جو نئے درخت کیسے بناتے ہیں، ہم یہاں یوتھ کو ٹرین کریں گے کہ پلانٹ مٹیریل کیسے بنائیں، یوتھ کو ہم جو ہمارے گورنمنٹ کی اسکیمیں ہیں وہ کیا کیا ہے ان سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تیسرے اور چیز ہے کہ ہمارا جو ہے ہم کولڈ سٹور بھی بنانے جا رہے ہیں، یعنی اس سے پہلے ہم یہ مانتے تھے کہ کولڈ سٹور صرف ایپل کے لیے ہے، لیکن والنٹ کے لیے بھی جو والنٹ کرنل جس کو ہم گریوی کہتے ہیں اس کے لیے بھی ہے۔ جب ہمیں مارکیٹ اچھا ہوگا جب ہم کولڈ سٹور سے نکالیں گے، جب ہمیں دیکھے گا کہ مارکیٹ ڈاؤن ہے تو ہم اس کو کولڈ سٹور میں سیف رکھ سکتے ہیں۔ ہم نے جو ایسے ٹیکنالوجی یوز کی ہے کہ ہمارے پاس چھوٹی ایک ایسی مشینری ہے جو ایک دن میں تقریباً 8 سے 10 کوئنٹل واش کر سکتے ہیں، ڈہیلنگ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد ڈرائی کریں گے، پیکنگ کریں گے، اور فارمر کو جہاں مرضی ہے وہاں وہ بیچ سکتا ہے۔ اب ایک اور چیز ہے کہ ہمارا یوتھ جو ہے ان امپلائمنٹ بہت ہے اس ٹائم ہمارے یہاں پہ ان امپلائمنٹ اتنی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ 8 سے 10 لاکھ ہماری ان امپلائمنٹ ہے، اور ہمارا جو
गाँव में जो यूथ है हमारा वो इस पे कोई ज्यादा काम इस पे जो एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा नहीं आ रहे हैं। हमने एक स्कीम शुरू कर दी है कि हम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करेंगे। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में क्या करेंगे, हम अपने एक यूथ को ट्रेन करेंगे कि प्लांट मटेरियल आप कैसे बनाएंगे, क्योंकि प्लांट मटेरियल की बहुत बड़ी डिमांड है। जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल में ड्राई फ्रूट का बहुत ज्यादा स्कोप है। इसके लिए हमें क्या करना है कि यूनिवर्सिटी या डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर ज्यादा प्लांट मटेरियल नहीं बन पा रहा है जितनी हमारी डिमांड है। अब हमने ग्रुप 15 दिन की ट्रेनिंग, 20 दिन की ट्रेनिंग, 21 दिन की ट्रेनिंग हम कर रहे हैं। उसमें हम क्या कर रहे हैं कि ये जो नौजवान है हमारा उसको हम ट्रेन कर रहे हैं कि ये प्लांट मटेरियल कैसे, उसके बाद हम वो स्कीम दे रहे हैं। यानी कि हमारे डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के पास कई तरह की स्कीम है, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपए की, जिसमें वो इंसेंटिव्स हम दे रहे हैं और उसके बाद वो अपने यूनिट खड़ा कर सकते हैं। ये हमारा एक बहुत बड़ा एक और प्लान है। तीसरा एक और प्लान है कि हम जो इम्पोर्ट वॉलनट आ रहा है इस टाइम ज्यादा कैलिफोर्निया से, कि उसको कैसे करें। जैसे हमारे आलमंड में भी बहुत बड़ा आ रहा है, इसी तरह वॉलनट में भी शुरू हो गया है। वो चीज हम कैसे करें। अगर हम डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की बात करें, जो वॉलनट यानी कर्नल है, करना जो है, करना में पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 ग्री मानी जाती है, क्योंकि वहाँ ठंडा इलाका है। ऐसा अल्लाह ताला ने ऐसा वहाँ निजाम बनाया है कि वहाँ का कर्नल पूरी दुनिया में मशहूर है। जब तक करना का कर्नल कुपवारा मार्केट में नहीं आ जाएगा, कर्नल का मार्केट नहीं बन पा रहा है। लेकिन वो जो वेराइटीज है, वो जो जर्मप्लाज्म है, उसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो फार्मर्स को दे रहे हैं। उसके बाद हम उसको ऐसे पैकिंग, ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे हम यहाँ से ज्यादा कंट्री में उसको एक्सपोर्ट करेंगे। उसके बाद जो हमारा जो जर्मप्लाज्म है, ये वॉलनट वेराइटीज है, वो हम अपने फार्मर्स को दे देंगे। फार्मर में ऑर्चर्ड्स में लगाएंगे, क्योंकि इससे पहले एक चीज था कि 4 या प्लांट एक कुनाल में आते थे, लेकिन अब ये टाइम आ गया कि हम 15 से 20 प्लांट एक कुनाल में अब आ जाते हैं। और इसमें जो हार्वेस्टिंग है बिल्कुल हाथ से की जाती है, पेड़ पे चढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। उसको हम ग्राफ्टेड वॉलनट कहते हैं। वो ग्राफ्टेड वॉलनट हमारे पास अवेलेबल है। कोई भी अगर फार्मर चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कुपवारा का हो, डिस्ट्रिक्ट बारामूला या किसी और डिस्ट्रिक्ट का हो, वो हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम वो प्लांट मटेरियल उसको देंगे। आपको वॉलनट मैन का खिताब दिया गया है। जी, तो जी सर। आपने क्या सर, कौन सी अचीवमेंट्स थी आपकी जिनके बिना पे? जी सर, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वॉलनट जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो इटली में है। वहाँ के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट यहाँ पे आए थे, डॉक्टर एवेंजेटू। डॉक्टर एवेंजेटू को हमने मिला है क्योंकि मैंने पीएचडी जो मेरा है, पूरा पीएचडी प्रोग्राम मेरा वॉलनट में ही है। और उसके बाद मैंने पिछले 15-20 साल से सिर्फ एक क्रॉप पे काम कर रहा हूँ, वो है वॉलनट क्रॉप है। मैं ये मानता हूँ कि अगर हमारा जम्मू कश्मीर का कोई फ्यूचर है हॉर्टिकल्चर में, वो ड्राई फ्रूट है, उसमें वॉलनट नंबर 1 है। क्योंकि ड्राई फ्रूट पे हमारा इतना पेस्टिसाइड यूज नहीं होता है। अगर हम एप्पल की बात करें, हम 15 पेस्टिसाइड पे पहुंच गए, लेकिन वॉलनट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये ऑर्गेनिक है। लेकिन हम इसको इतना आगे नहीं ले जा रहे हैं क्योंकि उसमें ऐसी न्यूट्रिशंस हैं जो इंसान के लिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए मैंने जो सारा अपना प्लान डॉक्टर एवेंजेटू और इटली गवर्नमेंट को दिखाया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एनएसबी और बहुत सारी टीमें आई हैं, तो उन्होंने कहा कि आप एक ही क्रॉप पे काम कीजिए, आगे भी कर दीजिए। उन्होंने मुझे ये नाम दे दिया क्योंकि मैंने 5 वेराइटीज और 500 से ज्यादा जो जर्मप्लाज्म है वो अच्छी वेराइटीज मैंने तैयार की है, जो मैं फार्मर्स को दे रहा हूँ। और मैंने लाखों प्लांट आज तक फार्मर को दिया और फार्मर को अवेयर किया कि आप एप्पल तो कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप वॉलनट भी कीजिए। क्योंकि वॉलनट बहुत ही कम लोग जो हमारे फार्मर हैं, बहुत ही कम इंटरेस्ट दिखाई देते थे कि हम वॉलनट नहीं लगाएंगे, पता नहीं कितना बड़ा पेड़। लेकिन मैंने लोगों को अवेयर किया, मैं गाँव गया, हर जगह पे जहां मुझे मौका मिला मैंने लोगों को अवेयर किया कि आप एप्पल के साथ साथ वॉलनट प्लांटेशन भी कीजिए। अगर आपके पास 5 कनाल लैंड है, 4 एप्पल पे लगाए, लेकिन कम से कम 1 कनाल आप वॉलनट के लिए बचा के रख दिए। लेकिन इस टाइम अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, इसलिए मुझे मैन ऑफ वॉलनट का खिताब मिला है। सर आपकी मैसेज क्या होगी कुपवाड़ा के जो कंडी बेल्ट के ऊपर वाले ड्रॉट प्रोन एरियाज हैं जहाँ पे ज्यादातर लोग ना वॉलनट उगाते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है, वो किस तरफ फायदा उठाएं सर इस टेक्नोलॉजी का? जो हमारा कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है ये बहुत ही अच्छा सूटेबल है वॉलनट प्लांटेशन के लिए। लेकिन हमारे फार्मर्स को अभी पता, हमारे फार्मर्स मेरे पास कभी भी आ सकते हैं। वो हमारा रिसर्च स्टेशन वॉलनट स्टेशन कोलंगाम में नजदीक में ही है। हम उनको सबसे पहले
इस चीज के लिए तैयार करेंगे कि आप अच्छी वेराइटीज जो वॉलनट के हैं वो लगाइए। दूसरा, वो ग्राफ्टेड वॉलनट लगाएंगे, सीड वाला वॉलनट वो नहीं लगाएंगे। उसके बाद हम उनको वो सारे स्कीम्स बताएंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वॉलनट पे के लिए। एक और एडवांटेज है हमारे डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में, ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम। इससे 10 लाख से लेके 50 लाख का जो है फाइनेंस मिलता है गवर्नमेंट, इसमें सब्सिडी भी है और बहुत ही कम लोगों को इस चीज का पता है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में हमारा वॉलनट ही आता है, उसको दिया गया है कुपवारा को। उसमें क्या क्या स्कीम्स है, अगर कोई प्रोसेसिंग यूनिट डालना चाहता है, कोई नर्सरी बनाना चाहता है या कोई नया और हाईटेक जो ऑर्चर्ड बनाना चाहता है वॉलनट में, वो हमारे पास आ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट हम उनको सर्विस देंगे और अच्छी गाइडेंस करेंगे। मैं अपनी यूथ को बार बार कह रहा हूँ, क्या जैसे एप्पल में ए ग्रेड और बी ग्रेड एप्पल है, इसी तरह वॉलनट कर्नल्स में भी ए ग्रेड और बी ग्रेड। ए ग्रेड पे तो मार्केट अच्छा है, बी ग्रेड पे हम क्या कर सकते हैं? बी ग्रेड पे हम इस टाइम आप देखिए पूरे वर्ल्ड में इस टाइम पीनट बटर चलती है, लेकिन अगर हम वॉलनट बटर चलाएंगे, वो वॉलनट केक वो सबसे ज्यादा बेटर है क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज्यादा है। इसमें प्रोटीन 21% है, इसमें फैट कंटेंट 60% से एबो है, यानी हम इसको वैल्यू एडिशन के लिए बहुत ही अच्छा है हमारा वॉलनट बी ग्रेड है, सी ग्रेड। इस टाइम तो कई आप देख रहे हैं कि वॉलनट केक बन रहे हैं, वॉलनट होनी बन रहा है, लेकिन इस तरह कमर्शियल नहीं। हम चाहते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से हम शुरू करें कि हम वॉलनट बटर बनाए, वॉलनट केक बनाए, वॉलनट कुकीज बनाए, जितने भी वॉलनट टॉफीज बनाए। मैं यूथ को और फार्मर्स को ये बताना चाहता हूँ कि ये नबार्ड का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है हमारे पास, इसीलिए भी हमने डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के लिए कि जो ये फैसिलिटीज है, चाहे मैनुअली वो साफ कर रहे हैं, चाहे मैनुअली वो कर्नल कर रहे हैं, वो हमारे पास आए, हम उनको वो सारी तरह की ट्रेनिंग देंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे। और 1 साल के बाद का जो काम है वो हम करेंगे, उनको सिर्फ मटीरियल हमारे स्टेशन पे लाना है, वो हम डिहेलिंग हो, ड्राइंग हो, पैकिंग हो, हम कभी आपको भी हम दावत देना चाहते हैं, आप भी आइए हमारे स्टेशन पे। क्या हम इस चीज के लिए कर रहे हैं कि ये जो हम कास्ट, इनका लेबर कास्ट है, इसको कम से कम हम कम करना चाहते हैं ताकि हमारे फार्मर्स को फायदा हो। एक और चीज हमने शुरू किया है, क्यूआर कोडिंग। क्यूआर कोडिंग में हमें ये वॉलनट्स की क्या वैल्यू है, क्या डाटा है, ये हमने डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से पहली बार थ्रू आउट वर्ल्ड में पहली बार हमने डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से शुरू किया है और अपने स्टेशन से, और हम पूरे कश्मीर वैली में ये क्यूआर कोडिंग भी करेंगे। तो सर वॉलनट फार्मर्स को रीच आउट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? हमें सबसे पहले हम शुरू एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस, हम रजिस्ट्रेशन ड्राइव शुरू करेंगे। जो भी फार्मर हमारे डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में वॉलनट से, सिर्फ वॉलनट से काम कर रहे हैं, हम उनके रजिस्ट्रेशन करेंगे, डाटा अपने पास रखेंगे, उनको ग्रुप वाइज यूनिवर्सिटी ले जाएंगे, शालीमार ले जाएंगे, ट्रेनिंग देंगे। गांव में हर एक जो भी इसमें फैसिलिटीज इस टाइम हैं वो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे 100% जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के वॉलनट ग्रोवर्स हैं उनके पास हो। शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। समीन अखरोट के हाई डेंसिटी प्लांट मटेरियल की वजह से शुमाली कश्मीर के कुपवारा जिले के काश्तकार काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। अब हर साल यहाँ हजारों पेड़ लगाए जाते हैं और इस वजह से जिले में अखरोट की पैदावार भी रफ्ता रफ्ता बढ़ रही है। हमारे नुमाइंदे रफीक अहमद ने एक प्रोग्रेसिव फार्मर या तरक्की पसंद किसान मुख्तार अहमद से बात की तो उन्होंने कहा, अभी हमारे पास प्रॉब्लम की जो पुराने दरख्त थे हमारे वो बोशदा हो चुके हैं, उनसे लोग गिरते हैं, क्यों अखरोट भी कम देते हैं। अब जो हमारी यूनिवर्सिटी ने बनाए हैं नए पौधे, वो 1 साल ग्राफ्ट किया, दूसरे साल तीसरे साल वो फल देते ही देते हैं। और हमारे कुपवारा में यहाँ बहुत सारे अखरोट जो नॉर्मली यहाँ अखरोट से पुराने जमाने से, वो तो इतने बड़े आला किस्म के अखरोट हैं कि ऐसे अखरोट कहीं अमेरिका चाइना में भी नहीं मिलते हैं। उन अखरोट को तलाश करना है, सर्वे करने हैं, उन्हीं की ग्राफ्टिंग करनी चाहिए। हमें नए पौधे बनाने चाहिए, हमें पुराने दरख्तों को आहिस्ता आहिस्ता उनको खत्म करना चाहिए, क्योंकि बहुत जानी नुकसान होता है उनसे, और वो जगह भी ज्यादा लेते हैं। ये जो बेल्ट है या लोलापा बेल्ट है, ये तो नेचुरली अखरोट के लिए बहुत बढ़िया, आब हवा अखरोट के लिए बहुत बढ़िया है। हमारा अखरोट ज्यादा, इसकी डिमांड भी ज्यादा है और इस पर कोई खर्चा लगता नहीं है, इस पर दवाइयाँ शवाइयाँ लगती नहीं, न इसको खाद डालने की जरूरत पड़ती है। ये तो 100% नेचुरली ग्रो हो जाता है। मेरी मैसेज ये है जिम्मेदारों से जिनके पास लैंड अवेलेबल है अखरोट के लिए, उनको चाहिए कि वो लेटेस्ट किस्म के अखरोट अपने यूनिवर्सिटी से कॉन्टेक्ट करके अच्छे किस्म के अखरोट दस्तयाब करके जमीन में अच्छा अखरोट लगाएं। पुराने अखरोट हमें आहिस्ता आहिस्ता से खत्म करने चाहिए, क्योंकि जमीन भी ज्यादा लेते हैं, अखरोट भी कम देते हैं। इसके साथ ही ज़िलानामा का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर हुआ। निगरानी आला अशफाक अहमद शाह, तरतीब व तहजीब कौशकी कशप, रिकॉर्डिंग व एडिटिंग नसीर अहमद लॉन, तहरीर व आवाज शेख तजम्मुल, पेशकश रीजनल न्यूज यूनिट आकाशवाणी श्रीनगर।